We just got the numbers, which is a sad part. One of them was very sort of like saddened because baby ke upar diwal gir gaya raha, and then there was another one. They were sheltering in a school. The other one was, of course, he was in his house with his family when the roof came on and the whole. So basically, the wife tried to lift that but could not. So she had to go in the hurricane. Jaakar ko bulaya na pada raat mein. So those were the very dreadful ones. And we expect hope कि आने वाले 2-4 दिनों में ऐसा कुछ और ना news आए. But one thing good is now the people have woken up and they are going left, right, center, trying to work out some relief for those people. I won't call it a good thing, but good thing in a sense कि it has brought the country together. I mean, as it stands, for surely, we need people, coming together. The whole country also coming together. Please, everybody comes together to help out, huh? Yeah, I mean, they're trying to sort of like this. For Viti Levu and Vanua Levu, the connection is very strong. Majority of the people who migrated from Lambasa, they migrated to Viti Levu. So basically, the links are here. What's happening is now they're trying to send those essentials to those people. So that is the scenario right now. And of course, Radio Naftrang and Sargam is coming on board right now, coming with something very big. That's going to happen soon, and that will be one of the biggest radio appeals we're going ahead. For surely, yeah, that's the other question. I know आप लोग Radio Naftarang hai. Can't hear you then. Communications Fiji Limited. You people have been there for so long and doing so much. And I know हमारे यहाँ पे भी Bay Area में बहुत से जो organizations है, they have also started doing something. तो किस तरह से, मतलब I know जो वहाँ पे DISMEC वाले हैं, government organizations जो है, they have really come up to the plate. They are doing whatever possible, na? See, the government will always do their part because apparently they have a responsibility towards their citizens. So they will do, but their portion is more like survey, then go through that process. And then, of course, they have to go through the parliament, they have to approve, they have to go through the cabinet, then they do certain announcements. But for that, they need the assessment because it's public's money, it's people's money. So they have to come up with different plans. The infrastructure, the sort of like everything that is linked to the infrastructure, roads, pipe water, and then housing. I mean, there are so many different things, but the damages, we can say, came into millions and millions. So that's a big thing. And right now we're not in a position to say, okay, everybody, the government will be able to fund that. No way. I think that people who have stood for that, and congratulate each and everyone who have helped. But the worst part is, I mean, the between Viti Levu and Vanua Levu, the link through the boat, the link through the airline just opened yesterday. So basically now it is coming up. Australia and New Zealand has already sent their aid. And then, of course, the other countries are coming on board. But there is a big, I mean, to get Lambasa back on its feet, it will take years and years. It's totally devastated. तीन शायद ये कहना सही कि सरकार ने अभी बहुत फूड टैक्स जो है, फूड टैक्स राशन देने का किया है। और रेड क्रॉस ने, फिजी रेड क्रॉस की मदद की है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद की है। लेकिन जैसे कि सत्या ने कहा है, जिस तरह से बिगड़ा है, क्योंकि लाइब्रेरी पूरा का पूरा उड़ गया है, या पूरा रूफ, और अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ये सोच रही है कि अभी देखेंगे, फिर देखेंगे कैसे सब कुछ होगा, फिर उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि तो कोविड के कारण तो ऑलरेडी स्कूल बच्चों की शिक्षा पर इतना असर पड़ा था,
अब ऑलरेडी एक तूफान के कारण आगे चलकर हम कह सकते हैं कि शायद थोड़ा सा असर और अभी देखो इतने सारे घर उड़ में लोगों ने बताया है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वो इवैक्यूएशन सेंटर्स में थे और वो वहां से देख रहे थे कि किस तरह से ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मॉन्स्टर है घरों को उठा रहा है घुमा रहा है और ऊपर से नीचे पर पटक रहा है। उस तरह से घरों को उन्होंने लोगों ने ऑलमोस्ट आप सोचिए मैट्रेस भीग तो वो कैसे सूखेगा, घर में जो सौदा है वो भीग जाए, इंसान कैसे खाएगा, क्या करेगा, क्या पहनेगा। कपड़ा तो ठीक है, आप धो के सुखा के पहन सकते हैं, लेकिन खाना और साफ पानी की अभी लोगों को सख्त जरूरत है। So I The thing think is, didn't just want to chip in into that what Sure. Sneh has said. Sure. I mean, okay, these things have been sort of ruined. The whole house, the essentials and everything. Yes, sab cheez to chala gaya. Okay, right. We provide, the people will provide food packs and all those. But it is, I mean, for continuity, you need to keep providing because to get back onto their feet, it will take months and months. Right? Because you won't expect the what you call cash crops to grow in the next few weeks. It will take absolutely not. Absolutely. It will take months to get back onto their feet. You also need to continuously give them some aid so that they start preparing themselves, the school, the house. I mean, we got the numbers: 23 schools totally ripped off. Totally ripped off. Wow. Just imagine. Each school to get it back on its sort of on the structure and all those things, it will cost thousands and thousands. We're talking about 23 schools. That's big. Yeah, it's gonna get into millions and millions of dollars of worth of restructuring. I mean, you know, construction. Exactly. And like aapne kaha hai, Satya, you know, so true in regards to that people will need help right now. जो उनके पास सौदा सामान वगैरह जो है वो भीग गया है, you know, कहाँ से लाएंगे अगर पैसा नहीं है whatever. अभी जैसे यहाँ का जो सिचुएशन है, कोविड का जो सिचुएशन है, you know, इसमें से अभी अमेरिका, you know, being the richest country in the world, you know, शॉप्स वगैरह जो है, रेस्टोरेंट्स वगैरह है, बिजनेस वगैरह जो है बंद हो गया है, लोगों के पास आमदनी नहीं है, there is no farm. याद रखना है, आई मीन फार्म तो है लेकिन जहां जहां पे लोग काम करते हैं उनके पास तो कुछ आमदनी है ही नहीं। और जब तक कि यू नो सरकार उनको ना मदद दे, ना उनको पैसा दे, और अभी भी आई मीन लाइक दिस टॉप लेवल पीपल, आई एम नॉट सेइंग दैट फीजी ऐसा कर रहा है कहीं पे, बट हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, यू नो, इन रिगार्ड्स टू आवर सेनेटर्स वर्किंग टू गिव हेल्प टू दीज पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है, पैसा जो इनको देना है, ये अभी भी सोच रहे हैं। I mean, though they are making millions, those are multi-millionaires, you know, जो senators वगैरह है, they are making millions. But to help out people, उनके जो दुख दर्द है वो समझना बहुत ही जरूरी है. And people will need that. And I know people, you know, चीनी, नमक, ये जो सब कुछ है उनको, आटा, चावल वगैरह जो है, for surely. And I hope हमारी जो सरकार है, I have seen some pictures of some ministers who have already, you know, gone to Vanwalevu, you know, them taking pictures and smiling, shaking hands, and I hope they will do much more than that. Thank you. Totally sort of agree to what you have said, that these people, they need the basics. Right now, it's not about the sort of all the luxuries, but this is the basic needs of those people. And I'm quite sure. I mean, it is in isolation too. Don't forget, Vanwalevu, you're going into interiors of Bua. Oh, yes. Big task, man. Big task. But as I said, Fiji is always a survivor, and I'm quite sure कि हम लोग bounce back होंगे. हमको इतना पूरा definite है कि things will normalize in time to come. Whenever we say Fiji, Ramnik Duik, Fiji की खासियत है, we have gone through the toughest times, और हम लोग toughest times से भी we had fought some of the issues, and I'm so happy, I'm so glad that within the people of Fiji, the people of Vanwalevu, people of Viti Levu, they've all started working on some of the things. I was surprised there were small groups who were already sort of putting those packages just to pass it over to the people in Vanwalevu. Now, if this thing is gonna carry on, I'm quite sure we will help our
brothers and sisters. Oh, But for sure. एक बात है कि it's not just a 1 day thing or 2 day thing. And people कब तक help करेंगे? There is a time limit for everything because उनका भी तो अपना घर चलाना होगा. So basically, there is outside help also needed wherever, if people in America or if you can sort of like help your people who are based in Vanuatu, we're not talking about Viti Levu, we're talking about Vanuatu, in terms of remittance, अगर remittance वगैरह है कुछ उधर से आप लोग अपने परिवार के लिए भेज सकते हैं, it would be nice, but these people need your help. इतना हम कह सकते हैं. हाँ, किसी ने ये भी पूछा है कि how can we help ना यहाँ से US से. So like you mentioned सत्य, I mean you know coming on to that point कि yes, आपके जो परिवारजन है, आप जिसको चाहते हैं वहाँ पे जानते हैं या कोई organization जो है वहीं पे वो काम कर रहा है, उनको help करने के लिए, for surely you can do that because सौदा सामान वगैरह जो है, I know अभी सुबह से truckloads of it's gonna be going off to Vanuatu. Yeah, in fact, the PM had, I was watching the news article, the PM had said help is on its way. So that was good. He reacted very quickly, very safe. That was one thing that was really good. But, as while we are watching, we are miles away from the country that had that cyclone going on. Or obviously, in all these years, I've stayed there in Fiji. Obviously एक devastating situation होता है, frustrating situation भी होता है और डर भी लगता है. तो यहाँ से लोग भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. The main reason that we've got you on this platform is because हम पर्टिकुलर्स तो पकड़ के हम बात कर लेते हैं, लेकिन कितने तेजी से हवा चली, how in comparison to cyclone Winston, was tropical cyclone Yasa, was it good, or I mean not good, but was it more devastating or less, or कितना destruction हुआ है इस चीज के लिए, मतलब जो technical particulars है, I know you are the best person to give us that. Snare, right? Well, Okay. the thing is, I mean, you cannot compare because it will be basically, we know it's category 5, और जो लोग उनके path में थे, they would be sort of like, क्योंकि Vanuatu last time नहीं cross करी था Winston, so they didn't know कि उसका पावा किस तरह का रहेगा and all those things. So it's not possible for comparison, but in terms of the technical term that the Met Office has given, it is category 5. And we know very well what it did in all those Rekirekis and all those Jin Path Winston gaya hai. But on the other hand, of course, as I said, helping people coming back to the reality now is so many options are there. I mean, you cannot be sending atta from there or chawal from there. But the easiest way and the best way would be, of course, supporting a group who's already taking those stuff from here. Or the other option, as I said, Radio Naftrang and Radio Sargam is going out of way. And this would be probably the biggest radio appeal we're going to do. And that will be coming up shortly. I'll do the announcement maybe tomorrow. And that's when people from overseas, they can contribute, because what we're going to do is everything will be live on radio and live on Facebook, and we will be giving you the account numbers. We will give you the details wherever you can. If you want, I'm just saying, if you want, you can go through our radio appeal. That could be one of those options to help those people. और आप लोग जो है मतलब रेडियो अपील में भी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स है, they would want to know कि इनको जो आप मदद देंगे, मतलब it's gonna be groceries wise, जो चीजें वगैरह है, you will try to do that, right? जो basic चीजें जो है that they will need right now, so उस पर आप इनको मदद देंगे, right? बिल्कुल, यही कोशिश हमारी रहेगी कि इस तरह उन्हें बेसिक चीजों की जरूरत है ना. अभी सबसे ज्यादा जरूरत उन चीजों की है जो उनकी जिंदगी को कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ा सके. जी. हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे सामान जो है ये उनको प्रोवाइड किया जाए. घर तो बनता रहेगा, थोड़ी सी जो हो गए हैं, जो टीन वगैरह, उसको इकट्ठा करके फिर से एक घर जो है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर दीन ये है
कि अभी फिजी दिस मोमेंट एज आई स्पीक, हम लोग अभी साइक्लोन सीजन में बैठे हुए, और अभी हम नहीं है, मतलब अप्रैल महीने तक फिर से ऐसा कुछ हो सकता है ना, एक डर बना हुआ है अभी भी, क्योंकि मेट ऑफिस ने कहा है कि अभी और भी साइक्लोन आ सकते हैं। तो अब जी। उस बात का डर है कि आगे चल के क्या हो सकता है। बात ये है कि अभी इमीडिएटली हमको मदद करनी है, तो Yeah. अभी इमीडिएटली सत्या ने कहा था कि एक फूड पैक अगर आप किसी को देते हैं तो वो कितने दिन चलेगा, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप एक आटा दाल चावल व्हाटएवर लेकर आते हैं, वो कितने दिन चलेगा घर में, अगर 5 लोग खाने इनफैक्ट फैमिली में कितने मेंबर्स है ये भी तो काउंट करता है, राइट? एग्जैक्टली। तो लोगों का बहुत मुश्किल से चलेगा। अभी हम जिन घरों को देख रहे थे, एक घर में एक महिला है, उसके 2 बच्चे हैं बस, उसके छत टूट गया है। अभी आप सोचे वो बेचारी औरत क्या करेगी छोटे बच्चों को लेकर। तो ये सब बातें हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है यहाँ पर, हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस सामने आ रहे हैं जो किसी न किसी तरह से मदद कर रहे हैं। फेसबुक पर, टिकटॉक पर, आप जानते हैं फिजी में टिकटॉक बहुत हिट है, तो टिकटॉक पर भी लोगों की मदद है, ये मांगी है, किसी तरह से मदद हो रही है। लेकिन वही बात है, पे आप भी हिट है इसने। Okay, nice. तो वैसे थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेते हैं, दिन तो गा लेते हैं, हमने सोचा चलो हम एक्टिंग। हाँ, जो एडवाइजेस ये देती रहती है तो कभी कभी हमें भी देख लिया करते हैं, एफबी पर पोस्ट करती है, तो या I mean, मेरा मतलब, मैं हमेशा एक बात को मानती हूँ, और मैं आज ये बात फिर कहूंगी कि जो लोग यूएस में शायद हमें सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में, जहां भी आप हमें देख रहे हैं, हमारी आवाज सुन रहे हैं, फिजी में ये क्रिसमस बर्बाद हो गया है। कई लोगों के लिए, कई सौ कई हजार लोगों के लिए ये क्रिसमस बर्बाद हो गया है। अभी देखो कोविड-19 के चलते, हम यहाँ फिजी की बात अभी फिलहाल कर रहे हैं, कोविड-19 के कारण कई लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। आपको मालूम नहीं होगा शायद, कई लोग घर में कई महीनों से उनके पास कोई जगह नहीं है, बिस्किट खाकर चला रहे हैं, ब्रेकफास्ट क्रैकर्स खाकर चला रहे हैं, चाय पीते, कई लोग पानी पीकर चला रहे हैं, इस तरह से जिंदगी जी रहे। अभी उस पे ये साइक्लोन आ गया, खास करके नॉर्थ में अगर हम देखें, जिनकी नौकरी चली गई नॉर्थ में और साइक्लोन आ गया, उनके बारे में सोचे। तो अभी हम लोग अपने घर में क्रिसमस मनाएंगे, फीस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, इतना सा खाए, इतना किसी को दे तो सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली, आई थिंक आई हैव सेड इट वे बिफोर कि जब आप एक 20 का वो BH10 का पैकेट खरीदते हैं या पोलमोल का पैकेट खरीदते हैं, तो 10 कर दीजिए कट करके, क्योंकि ऑब्वियसली एक चेन स्मोकर को मैं नहीं बोल सकती कि आप तंबाकू बंद कर दीजिए पीना, लेकिन आप 20 से कट करके 10 कर सकते हैं, एंड वो जो पैसा बचे वो आप दे सकते हैं टू दीज नीडी पीपल, या फिर वो जो लॉन्ग नेक बिया खरीदते हैं या स्टबी या जो है वाइन, ये सब कुछ शायद कट डाउन करके हाफ बॉक्स ले सकते हैं, एंड हाफ का पैसा जो है ये, या फिर शायद इस क्रिसमस में is it necessary to get drunk, वो पूरा आप दे सकते हैं to the people. you know, the thing is this, Sama, ये एक individual person पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आपने देखा है the devastation that has gone, और social media के through, तो I know people have seen what has happened, and we know Winston क्या था, अभी ये क्या है, category 5 की हम बात कर रहे हैं। So Michael, I don't know, you wanna agree? जो लोग हैं, I know, मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, वीटी लेवू में जितने भी लोग रहते हैं, यहाँ पर यूएस में भी I know कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है, they are working towards that, and अगर आप इनको देखे, या फिर सत्या से he's going to be mentioning about रेडियो अपील जो करेंगे, because I know रेडियो नफ्तरंग, रेडियो सरगम, Communications Fiji Limited, they have been at the forefront of helping people. इस तरह के devastation, destructions जो भी हुआ है, they were all out there. So in fact I think this cyclone affected, मतलब ये इतना दूर था लेकिन फिर भी I guess ने it did affect, I was watching on social media, किनोया में छत वगैरह थोड़े उड़ गए थे, और सुवा एरिया भी इनफैक्ट अफेक्ट हुआ था। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि हम जिस इलाके में नसीनू में रहते हैं, वहां पर भी काफी ज्यादा असर जो है ये पड़ा है। इतना दूर था लेकिन फिर भी उसका
है ये 400 किलोमीटर तक ये असर कर सकता था। अभी आप सोचें, ये सुबह की तरफ आ रहा था। आप सब सोचें इस बात को ना, जो लोग खास करके अगर सुबह में है, सुबह की तरफ ये आ रहा था। 11 बजे हमको बताया गया था कि ये सुबह हिट करेगा, और हम लोग सब बैठे, सबने अपना घर बांध दिया। आप जो सोचो, दिल में डर तो था कि क्या होगा अगर इस तरफ आया, क्योंकि विंस्टन में हमने देखा था कि कैटेगरी 5 ने क्या किया था। लेकिन ये शायद हम लोगों की बहुत अच्छी किस्मत थी कि ये 11 बजे से थोड़े पहले ही न्यूज अनाउंसमेंट हुआ कि ये मूव हो गया। तो शायद अगर सुबह में आता तो शायद पता नहीं अभी हम लोग इस तरह बात कर रहे होते आई नो। हम नहीं। एक्चुअली में सुबह में ये क्या वीडियो होता, कितने हम घर एक्चुअली में ये जाते, वीडियो कितने- आपसे थर्सडे को करना चाहते थे, बट मैं इसी में मैंने यही डीन से कहा कि आई डोंट थिंक द नेटवर्क इज गुड, क्योंकि मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, यहाँ इवन यूएस में लोग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, फिजी में लोगों को, इनफैक्ट लंबासा के लोगों को, वहाँ सुवा के लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, किसी के पेरेंट्स वहाँ हैं, किसी के फैमिलीज वहाँ पे है, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आई वाज से एंड आई टोल्ड यू नो, हम कुछ दिन बाद करते हैं, क्योंकि आई थिंक द नेटवर्क इज डाउन, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट द सिचुएशन विल गेट, जस्ट लेट्स गिव इट अ फ्यू डेज। नेटवर्क काफी डाउन हो गया था। जिस दिन इसका असर पड़ा है, उस दिन हमारे रेडियो स्टेशन पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे इतने मैसेजेस आ रहे थे कि हम माँ को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, हमारे डैडी पता नहीं कैसे हैं, हमारे भैया वहां पे है, क्योंकि काफी लोग, जैसे कि एसएम ने कहा, उधर से इधर आ गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं काम वगैरह के वास्ते ना। तो 1-2 दिन के बाद में काफी लोगों का धीरे धीरे से कांटेक्ट जैसे शुरू हुआ है। तो अभी तो कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन कई लोग हैं जो जिनका फोन वगैरह सब टूट गया है, भीग गया है, क्योंकि आपके घर में छत उड़ता है, सोचो, जो भी है वो सब कुछ भीग जाता है। आप अपनी जान बचाएंगे, आप खाट के नीचे घुसेंगे कि आप कहाँ जाएंगे? एक खाट से मुझे याद है, आपने शायद फोटोज वगैरह देखे होंगे मधुवाता में, किस तरह से केव में छोटे छोटे बच्चों को लेकर, नन्हे नन्हे कुछ महीनों के बच्चों को लेकर पेरेंट्स जो है ये चले गए थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही शमा और दीन, कि ये फिर भी मुस्कुरा रहे थे। इनफैक्ट आई सॉ द न्यूज ने, जहाँ तांबिया में जो हाउस, आई थिंक तांबिया, इफ आई एम गेटिंग द प्लेस राइट, लोग घर के फ्लोर के नीचे थे 5 घंटे तक। हाँ, अब सोचो, अब देखो, एक व्यक्ति की जान चली गई, उसकी पत्नी को पता है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है। स्कूल में सब लोग इकट्ठा है, इवैक्यूएशन सेंटर में, सब जानते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो चले गए, उनका देहांत हो गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि निकल कर जाकर मदद करे, क्योंकि सबके सामने वो हो रहा था कि घरों को उठा के ये तूफान जो है ये नीचे फेंक रहा था। 8 घंटे उसी तरह कपड़ों में मिट्टी लगी, कपड़े भीगे, बच्चे तक 8 घंटे। आप सोचे, आप भीगा कपड़ा पहनकर क्या 8 घंटे तक कहीं पर बैठ सकते हैं? बड़े तो शायद कर भी ले, बच्चों के बारे में सोचे। 8 घंटे बाद तब उन्होंने जाके उस व्यक्ति को ढूंढा जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो लाइक ये सारी चीजें जो है ये दिमाग में घर कर जाती है, और सालों तक क्या, ये अंतिम सांसों तक आपको याद रहेंगी। हमें सुन के ऐसा लग रहा है, इसने इमेजिन द पीपल जिन्होंने ये दृश्य देखा, उनकी बीवी, उनके बच्चे, जो उनके रिलेटिव्स। एग्जैक्टली। तो वही बात है ना कि थोड़ी सी अगर आप मदद कर देंगे, थोड़ा सा, तो मैं इस बात में बहुत विश्वास करती हूँ, और ये आप सब जानते हैं कि आप एक देंगे, रब आपको 10 गुना देगा। तो आप थोड़ा सा $10 देंगे तो डेफिनेटली आपके रास्ते में तो वो कुछ ना कुछ जरूर देगा। पानी की चाह में ना दीजिए, बस अपने मन को ये दिखाएं कि आप भी इंसान है, आपके ऊपर भी ये मुसीबत आती तो लंबासा के लोग उमड़ के आ जाते, इसीलिए तो उसे फ्रेंडली नोट कहा जाता है। आई नो, ये सिचुएशन, मतलब आप बता रही थी, आई कुड इमेजिन। मुझे याद है जब मैंने इनफैक्ट स्टार्ट किया था, मैं एकदम नई थी रेडियो इंडस्ट्री के लिए, एंड उसी टाइम पर ये साइक्लोन एंड फिर फ्लडिंग का वार्निंग आया था। हम लोग पुल कर रहे थे शिफ्ट, एंड अराउंड 2-3 AM इन द मॉर्निंग हमारे पास कॉल आया कि कुछ लोग छत पर बैठे हुए हैं। उस व्यक्ति ने मुझे पूरा डिटेल दे डाला, मतलब मुझे सिर्फ नंबर और पता चाहिए होता था, ताकि मैं जाके न्यूज डिपार्टमेंट को दूं और वो डिस्मैक सेंटर को दे, ताकि उनको राहत पहुंचाया जाए, हेल्प किया जाए।
So that's why we were there. लेकिन इस व्यक्ति ने पूरा सब कुछ बताया मुझे कि किस तरह वो बैठे हैं, 2 रोज हो गए थे छत के ऊपर बैठे थे, और पानी पूरा घर के छत तक आ गया था। उनको पता नहीं था कि वो अगली सुबह देख पाएंगे या नहीं, वो, उनके बीवी, उनके बच्चे, और कुछ खाना नहीं खाया था। तो आई थिंक आई वाज एट दैट मोमेंट, क्योंकि यूज्ड टू नहीं होते हैं उस चीज को सुनने के लिए, एंड आई थिंक कभी भी नहीं होंगे। आई वाज इन टीयर्स उस चीज को सुन के, क्योंकि वो व्यक्ति इस तरह से एक एक चीज बता रहा था कि कैसे वो 2 दिन से घर पे बैठा है, बच्चों को खाना नहीं दे पा रहा है, एंड एवरीथिंग। शमा, 20 साल मैंने न्यूज रूम में काम किया है, 20 इयर्स मैंने अपना न्यूज डिपार्टमेंट को दिया है एज अ जर्नलिस्ट। ऐसी ऐसी जगहों पर मैं गई हूँ जहां मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि दिल दहल जाए, और दिल एकदम मजबूत हो गया है ऐसी चीजों को। बहुत सारे साइक्लोन कवर किए हैं, बाढ़ कवर किए हैं, बहुत कुछ कवर किया है, लेकिन विंस्टन के टाइम पे और अभी ऐसा टाइम पे जो देखा, दिल रो पड़ता है। इतना मजबूत दिल होने के बाद भी दिल रो पड़ता है, क्योंकि लोग जिंदगी भर, अभी आप काम कर रहे हैं, अभी आप अपने आप को शूज में रख के देखिए कि आप मेहनत करते हैं, एक एक पैसा। अभी आप जानते हैं कि कोई लोगों की कमाई यहाँ पर $80 है, $100 से ज्यादा है नहीं। $100 में इंसान हफ्ते भर अपना घर चलाता है, तो उसमें वो बचाएगा क्या, बनाएगा क्या? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से पेट काट के, दाल भात खा के लोग चलाते हैं, किसी ना किसी तरह अपना घर बनाते हैं। एक पल में सब कुछ बर्बाद हो जाए, फिर क्या आप जिंदगी लगाएंगे, 20 साल और लगाएंगे इकट्ठा करने में, घर बनाने में? तो एटलीस्ट प्लीज किसी ना किसी तरह से उनकी मदद कर दे कि फिर से उनको अगला 20 साल न लगे फिर से अपना एक घर बनाने में। तो किसी ना किसी तरह से अगर कोई भी मदद कर दे तो बस ये बहुत बड़ी बात। आशा यही है कि जो हमारे लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स है, फीजी के जो लोग हैं, फीजी की जो सरकार है, और भी जो हमारे देश विदेश में जो वहाँ से लोग हैं, फीजी से जो लोग हैं, उनको हेल्प करना चाहे, फॉर श्योरली दे कैन डू दैट। एक्चुअली अभी एक मैसेज आया हमारे कनाडा से। आई हैव अ फैमिली आउट देयर, प्रीत गाउंडर एंड फैमिली, उनके जो हस्बैंड है, उनके फाउंडेशन के थ्रू, प्लस फीजी में जो उनका कनेक्शन है, वहाँ पे वनवालेवु को मदद करने के लिए दे आर प्लानिंग टू सेंड अ कंटेनर ऑफ फ्रॉम कनाडा, और वहीं फीजी से भी उन लोगों को मदद करना चाह रहे हैं। एंड आई नो वितिलेवु में जितने भी लोग रहते हैं, वनवालेवु से जो है, अपने अपने परिवारजनों को अगर आप हेल्प करना चाहे, फॉर श्योरली आई नो दे विल बी एबल टू डू दैट। एंड होपफुली जितनों घर पे जो हुई है, आई नो लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के जो गवर्नमेंट रहे हैं, they were really out there in front, and hopefully हमारे जो US government है, कनाडा के जो government है, they will be able to do something about this. I mean, for surely they will be able to help them out, or the people of Fiji, of course, especially the Banwalevu people, जिनको ये इतनी ज़्यादा हानि हुई है, and just pray and think कि they'll get back to normal. और स्नेह, उनके जो पिक्चर्स वगैरह कभी हम देखते हैं ना, फीजी के खास बात है उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट, I mean, that really, it's शायद इसी को कहते हैं द बुला स्माइल। वो कभी नहीं छूटता। फिजी के साथ में बुला स्माइल हमेशा जुड़ा है, चाहे कितनी परेशानी हो, हमेशा स्माइल करना फिजी की खासियत है। तो we have been through that. I mean, Shama, you have been through that. Michael, I know you were there. Hurricane की बात उस वक्त like 70s 80s में उतना शायद नहीं कही होगी। आप प्राउड फील कर रहे होंगे कि हम फिजियंस हैं, हम चाहे जिस भी देश में हैं, क्योंकि हमारा बुला स्माइल हमेशा फेमस रहता है पूरी दुनिया में। And I know इंडिया से जो लोग हैं, पाकिस्तान से जो लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं यहाँ पर रेडियो जिंदगी के, for surely they will be helping out. आप जहाँ कहीं पर से भी है, किसी भी तरह से आप इनको हेल्प करना चाहे, for surely you could go visit fiji.gov, या फिर जो संस्थाएं हैं, I know हमारे यहाँ बे एरिया में भी लोग धन वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं to help those people out there. So hopefully it is for a good cause. And Shama, I know Satya actually dropped out. Maybe he had some things to do, and really want to thank you for joining us for the first time. And I know yes, thank you. इसने
आप आई हैं प्लेटफॉर्म पर, आप इतने सालों से इस चीज में काम कर रही हैं, इस फील्ड में काम कर रही हैं, एंड दैट्स व्हाई आई डिड मेंशन टू टीन के इनसे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता बात करने के लिए इस चीज के बारे में। एंड ऑफ कोर्स आई नो, माय सिंसियर अपॉलॉजीज, हमने सुबह सुबह आपको संडे को उठाया। कि मैंने एक्चुअली मैंने उनसे कहा था कि संडे मेरा सोने का दिन होता है, एवरीडे सुबह 4 बजे उठते, एक दिन तो 9 बजे सोने दो मुझे। ओके। इन्होंने कहा एकदम चुपचाप तैयार होके आ जाना, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। तब मुझे पता चला शमा कहीं भी किसी भी देश में चली जाए, ये लड़की कभी नहीं बदल सकती। ओह वाओ। even इसने all these years आपको आप इतने एक्सपीरियंस आप बटोर चुकी है। आई थिंक सत्या has gone, so I would have asked him, but you were here, तो आपसे पूछ लेते हैं कि in all these years आपको ऐसा क्या लगा कि हर साल ये नवंबर टू अप्रैल ये हरिकेन या साइक्लोन वार्निंग का सीजन होता है फिजी में, लोगों को पता होता है क्या करना है क्या नहीं, फिर भी हम वार्निंग्स देते रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब आप शिफ्ट कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, या फिर आप जगह पे जाती है रिपोर्टिंग करने के लिए लाइव या न्यूज। अभी तो आप सरगम में आ गई हैं, तो यहाँ पर मतलब ऐसा क्या है जो कि रैंडमली होता ही रहता है, जो इरिटेट कर देता है आपको लोगों के बारे में जब वो ऐसे सिचुएशन में होते हैं? खास करके जब हमें गालियां तो बहुत पड़ती हैं, खास करके जब लोग कि तुम लोग इतना झूठ बोलते हो, बोल रहे थे कि तूफान आएगा, तूफान तो आया ही नहीं। अरे बप्पा, हम थोड़े ना तूफान को बोलते हैं कि जाओ भाई नहीं आना, तूफान की मर्जी को किधर जाए ना। अब देखो कई लोग हैं कहते हैं, अभी देखो पावा चला गया, हमारे फ्रिज में इतना मीट भरा हुआ है, कुछ बताओ हम क्या करें। मैंने कहा हफ्ते भर से बता रही हूँ न्यूज़पेपर भरो। हाँ। और फ्रिज को नहीं खोलो, तो उन्होंने कहा आप एफएआई से बात कर, आप एएफएल से बात कर सकती हैं या नहीं कि वो जल्दी से इस जगह पर पावर सप्लाई जो है वो सब मान्य कर दे ताकि हमारा मीट नहीं खराब हो। इसके अलावा पानी क्यों बंद है, आप लोग हमें क्यों नहीं बताते कि पानी कब तक आएगा। अरे भैया वोटा अथॉरिटी को पूछो यार, परेशान। कभी कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं दीन और शम्मा, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। हम सिर्फ ऐसे पढ़ते हैं और हम सोचते हैं शायद डरे हुए होंगे, छोड़ दो, रहने दो, शांति करो, रिलैक्स करो। नहीं, क्योंकि हम भी वहां पर इतने घंटे तक बैठे रहते हैं, शायद लोग ये बात भूल जाते हैं कि जो न्यूज आरजेस होते हैं, जो न्यूज जर्नलिस्ट्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, जो इनफैक्ट लाइव उस जगह पर जाते हैं, सारा फीडबैक लेकर आते हैं, कैमरामैन होते हैं या कुछ भी होते हैं, ये सभी लोग भी घंटों भर काम करते हैं। आई नो कि मैंने आज आपको जगा दिया है, लेकिन आप भी वीक भर से यू हैव बीन इन दैट सिचुएशन, बट वी हैड टू गेट द मैसेज अक्रॉस। हाँ नहीं बिल्कुल, बात ये है कि हम लोग जितने रिपोर्टर्स हैं, आप जानते हैं रात भर काम करते हैं। अभी हमारे साथी अश्विन और सागर थे, उन्होंने रात भर काम किया, सुबह 6 आवर 12 आवर शिफ्ट हम लोग करते हैं, घर नहीं जाते हैं। घर यहाँ तूफान चल रहा है लेकिन फिर भी रेडियो में काम कर रहे थे, क्योंकि हमारी एक भावना है कि हमको अपनी सेवा प्रदान करनी है। जनता को सबसे पहले हमको खबर जो है ये देनी है कि कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। हम समझ सकते हैं कि दिल में डर है, लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करती है वो ये है, हम लोग हमेशा बताते पानी भर के रखो, और जब पानी बंद हो जाता है तब हमसे पूछा जाता है कि पानी कैसे आएगा, हमारे घर पे तो एक बूंद पानी नहीं है। अरे भैया इतना हमने भरा नहीं है। हाँ, क्या करते हो, पानी भर के रखो। एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, उसने कहा स्नेह प्लीज मेरी वाइफ को समझाओ, क्योंकि मैंने कहा कि मैं जब भी सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीदती हूँ मैं क्या करती हूँ, खत्म होता है धोती हूँ, उसमें पानी भर के रख देती हूँ। मेरी हमेशा से एक आदत है, मेरे पास ऐसे स्टॉक पड़े हैं, जब पानी बंद होता है ना वो इतना काम आते, मैं क्या बताऊँ आपको। तो इस व्यक्ति ने, मैंने रेडियो पे ये कहा, तो इस व्यक्ति ने कॉल किया, कहा मेरी वाइफ का कहना है कि गंदगी होती है, घर मैला होता है, अब देखो पानी बंद हो गया, मुझे बाल्टी ले जाके पता नहीं किसके घर जाना पड़ रहा है और जाके पानी लाना पड़ा है, थोड़ा सा दिमाग दो। तो ऐसे ऐसे कैंडल्स, मैंने कहा एक छोटा सा बॉक्स ले लो या एक छोटा सा बेसन जो भी है,
उसमें कैंडल रखो, उसमें बैटरी रखो, माचिस, लाइटर, ये सब कुछ रखो। केरोसिन चेक कर लो, देख लो घर में गैस है कि नहीं है। ये सब कुछ हमने बताया था कि कर लो, लेकिन लास्ट मिनट में लोग कहते हैं कि नहीं किया। तो फिर नहीं किया तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं ना, हम तो बताते ही रहते हैं अपनी तरफ से। ये मुझे सबसे इरिटेट करता है। आई नो, लोग सोचते हैं कि हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन है FEA के साथ या फिर वाटर अथॉरिटी के साथ। है ना कनेक्शन, बट द थिंग इज दैट स्नेह, ये लोग हमारे साथ ही रहेंगे। ऐसे लोग जो है ये हमारे साथ ही रहेंगे। यहाँ पर भी हमारे जो US में है, अभी मान लिया जाए माइकल, डोनाल्ड ट्रम्प हार गए हैं, लेकिन वो अभी तक हार अपना माना नहीं है। और उनके साथ में 74 मिलियन पीपल जो है वो शायद यही सोच रहे, मे भी अच्छा आधा सोच लो, 35 मिलियन की बात करो अगर लेकिन वो सोच रहे हैं ना ये अभी भी ये 4 साल और इसमें प्रेसिडेंसी में रहेंगे। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु विल बी देयर। So we have to, I know it's irritating, it's frustrating कि ये क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, but really wanna thank you for... मैं एक बात कहना चाहूंगी दीन, कि अभी हम साइक्लोन सीजन से, मैंने पहले भी कहा था कि वी आर नॉट आउट ऑफ द वूड्स येट, अभी हम साइक्लोन सीजन में हैं। अभी भी मैंने विंस्टन में अपने घर में शटर्स लगाया था, विंस्टन के टाइम पे। मुझे डर था क्योंकि कैटेगरी 5 हो गया था ना, और हम लोग चूंकि न्यूज में इतने साल से नो, तो तब से आप बिलीव नहीं करोगे, आज तक मेरे घर से शटर्स निकला नहीं है। मैंने निकाले नहीं, मैंने कहा रहने दो, बस लगे रहने दो। हर साल कौन निकाले कौन लगाए, बस पड़ा ही रहने दो। तो बात का मतलब ये है कि अभी तैयार करके रखो अपने आप को, धीरे धीरे एवरी वीक थोड़ा थोड़ा बोटल्ड वाटर खरीद के रखो, मैचेस, बैटरी, टॉर्च, धीरे धीरे इन सभी चीजों में इन्वेस्ट करो। घर में जहां पर थोड़ा सा कमजोर हो गया है उस जगह को मजबूत करने की कोशिश करो। मेरी बस यही एक एडवाइस है, यही एक सजेशन है, यही एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ऐसा करो। And I hope हमारे जो फीजी वाले हैं they will definitely try to take वो सुनेंगे आपको और the message that you give out to all those people, and really want to thank you for joining us for the first time. बहुत अच्छा लगा आपको देख के, and I know Satya dropped out, we'll be back, but आपको लाते रहेंगे हम सभी लोगों को यहाँ पर अपडेट करने के लिए। And I know we have so many people, Rio de Janeiro से, I think Brazil से किसी ने हमको they're watching the program as well, hi hello किया है, and if you people out there Canada से, नावो नानी से, जिस तरह से अगर आप मदद देना चाहो tropical cyclone Yasa के प्रति, in regards to the people in Banwalevu, for surely do that. But really want to thank you Shama, Michael, to Satya as well, and Sneh for joining us and updating us, and for surely we'll try to link up और भी ज्यादा जानकारी के लिए कि किस तरह से हमारे जो लोग यहाँ पर है हमारे जो पीड़ित लोग है बनवालेवु में, उनको कैसे मदद दे सके। So really want to thank you, and of course we'll be talking again. थैंक यू दीन। जाने से पहले बस एक बात कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए शमा एंड दीन। हमारा लिंक अभी भी भारत के साथ में जुड़ा हुआ है। आपने कहा था कि भारत के कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें देखते हैं, जो US में भी है। तो हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि हमारे पूर्वज वहां से आए थे, और भले हमारे पूर्वज इस संसार में नहीं है, लेकिन हमारा खून अभी भी भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी के शरीर में दौड़ रहा है। तो हमारे पूर्वज वहां पर अभी भी है, तो उनके साथ लिंक अभी भी जुड़ा हुआ है। आपको हमारा प्रणाम और नमस्ते। Thank you so much. Thank you.